A very good morning to all my dear students. Today we are just going to do another part from the lesson Glimpses of India, that is part 3rd, and the name of this very part is Tea from Assam, which has just written by Anup Kumar Datta. Here Arup Kumar Datta is an Indian writer and a journalist based out of Guwahati in Assam. So Arup Kumar Datta himself belonged to Assam. That's why he is a keen observer from the destinations belongs to Assam. So here in this essay comes short third part of this lesson. We will get to know the facts about the teas, and we will come to know how Assam and its people used to gather tea and how the tea plantations grow here. We will also come to know about the legends prevailed about the tea in the theoretical portion of our generation and you can say books. After that, we will also conclude the how you can say difficult word meaning, as well as we will cover the question and answers of this following third part. And let's get started with the author's introduction first. So here Arup Kumar Datta is an Indian writer, as I have already told you, and a journalist based out of Guwahati in Assam. He has written 16 books for adults and 17 adventures novel for young people. So if I'll talk about Arup Kumar Datta's birth date, then he was just got born in 1946 in Jorhat, Assam, India. So when a writer himself got born in that particular place to which he is going to write about, then we can feel the keen observation of that particular writer. So here we'll come to know that by nationality he is an Indian, because he just got born in Assam, India. By his occupation, he is a writer and a journalist. If I'll talk about his alma mater, then it will be University of Delhi and the Lawrence Schools, Sanawa. And if I'll talk about some of the awards, then he was awarded the Lifetime Achievements Honor by the Association of Writers and Illustrators for Children. So what is the name of the association? That is the Writers and Illustrators for Children, New Delhi. So here he had also won the numerous awards, including the Shankars Award in 1979, conferred to mark the International Year of the Child. So he has been awarded the Civilian Award, that is Padma Shri, by Government of India in 2018, and still now he is alive among us. And also he is just about to write many things like this these essays like the tea from Assam, and he is going to write so many of the things like adventures novels and books for adults. So this is all about our author. Now let's take our heed towards our explanation, and first of all let's focus over this italic formed paragraph. Here come to know that Pranjal, a youngster from Assam, it means the first character in this essay is Pranjal, and another one is Rajveer. Both are the classmates at school in Delhi. Pranjal is a youngster from Assam. It means Pranjal is a character which just belong to Assam, India, and Rajveer is the classmate of Pranjal, and they are just classmates at the same school in Delhi. It means Pranjal just came in to Delhi to complete his education, but he belongs to Assam. If I'll talk about the Pranjal's father's occupation, then he is the manager of a tea garden in the Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So it has been clear to us that it is the time period of summer vacation, especially in the Delhi. If I'll talk about, then it will be the half of the May, and it will complete grab the June month. Then it is the summer vacation and this time period of May and June. So now at this particular time the lesson has started with the conversation, as well as some scenario discovered by our Rajveer, who has just got invited by Pranjal to visit his home during these summer vacations, as I have just already been told you. So
Let's get started with the first of the line, but before this I want to tell you that at this moment, before starting this chapter, at this moment Pranjal and Rajveer are just seated on you can say in the train, and they are just moving towards the Assam. So let's take the you can say take a look over this very lesson and just come to know what about this lesson and what we will cover throughout the lesson. So let's explain first line in Hindi as well as in English. So here the first line says, chai gram, a vendor called out in a high pitched voice. जनरली हमें पता होता है कि जो वेंडर्स होते हैं, फेरी वाले होते हैं, जो चाय गरम यानी चाय की ठेली लगाते हैं, कहाँ पर, किसी भी जंक्शन पे जहाँ ट्रेन्स जो है वो रुकती हैं, तो जहाँ प्रंजल और राजवीर ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो आसाम की तरफ रवाना डिपार्चर हो चुके हैं. एंड यस, वहाँ पर वो जहाँ ट्रेन रुकी हुई है वहाँ पर वेंडर्स जो हैं वो क्या चिल्ला रहे हैं, चाय गरम. इट मीन्स इट इज़ द टाइम ऑफ द मॉर्निंग. सो नाउ उनकी वॉइस जो वो काफ़ी हाई पिच होती है, जो हमें दूर से सुनाई देती है, राइट. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब. इट मीन्स कई बार जो वेंडर्स होते हैं वो विंडो पे आने के बाद यानी जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से वो झाँकते हैं और अपना हाथ अंदर की तरफ चाय का कप करके बोलते हैं कि चाय चाहिए साहब. तो यहाँ चाय साहब का मतलब है दैट दे आर स्पीकिंग इन हिंदी, एंड हियर चाय मीन्स टी, राइट. सो हियर गिव अस 2 cups. अब प्रंजल कहता है हमें 2 कप चाय दे दीजिए. दे सिप द स्टीम्ड हॉट लिक्विड. हियर हॉट लिक्विड रेफर्स टू टी. यहाँ स्टीम्ड मीन्स उसमें से भाप निकल रही थी, बिकॉज इट इज़ टू हॉट टू बी ड्रिंक. सो वो उसको सिप करके पी रहे थे, इसलिए वो बिकॉज इट वॉज अ स्टीम्ड हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. उस टाइम पे जहाँ वो जिस कंपार्टमेंट में वो बैठे हुए थे उस टाइम पे लगभग अप्रोक्सीमेशन ऑल ऑफ द पीपल हु आर जस्ट जॉइन दैम इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग द टी. वो भी सारे चाय के यानी कि चाय पी रहे थे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे. डू यू नो that over 18 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said. अब राजवीर जो है वो कीन ऑब्जर्वर है और वो अपने ऑब्जर्वेशन से कहता है, यानी कि उसके पास एक नॉलेज है यू कैन से. तो वो उसको एक फैक्ट बताता है प्रंजल को कि तुम्हें पता है पूरी दुनिया में हर दिन कम से कम 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो पिए जाते हैं इंसानों के द्वारा. व्यू एक्सप्लेन प्रंजल. यानी जैसे एकदम से चौंक कर प्रंजल जो कहता है ओह ऐसा है, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. टी काफ़ी पॉपुलर है इसका मतलब. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब ट्रेन जो है वो स्टेशन से चल पड़ी है. प्रंजल buried his nose in his detective book again. इट मीन्स प्रंजल जो है वो तब भी यानी कि इस सीन से पहले भी वो क्या पढ़ रहा था, अपनी डिटेक्शन की जो बुक हैं, जासूसी वाले बुक्स हैं, वो उनकी स्टोरीज जो है वो पढ़ रहा था. अब राजवीर को भी बहुत पसंद है डिटेक्टिव्स की बुक जो है, स्टोरीज हैं, वो बहुत बड़ा फ़ैन है उनका. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. अब वो आसाम की तरफ बढ़ते हुए सारी ब्यूटीफुल सीनरी को ऑब्जर्व करना चाहता है, उनकी कीन ऑब्जर्वेशन करना चाहता है. दैट्स व्हाई ही डजंट शो एनी इंटरेस्ट इन डिटेक्टिव स्टोरीज. सो प्रंजल जो है यहाँ पता चलता है कि वो डिटेक्टिव बुक्स का फ़ैन है. इवन राजवीर भी है, बट राजवीर फ़िलहाल अपने आसपास की जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसको एंजॉय कर रहा है. बट प्रंजल क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज प्रंजल इज़ हिमसेल्फ बिलोंग टू द पर्टिकुलर प्लेस. वो यहाँ पर पला है, बड़ा है, तो उसे हर एक चीज़ यहाँ पता है. सो इज़ फैमिलियर विद दिस सीन. सो बट राजवीर डजंट सी ऑल दिस काइंड ऑफ सीनरी because usually in Delhi it's not belong to see that you can be able to see such kind of greenery everywhere. So he said it was green. सारी जगह बहुत सारी हरियाली थी. green everywhere, हर जगह हरियाली. राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने कभी भी इससे पहले इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी. Then the soft green paddy fields gave way to टी ब्यूशेस. अब जो सॉफ्ट के जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थे उसमें से एक सिंपल सा टी ब्यूशेस की जो लाइन थी वो जा रही थी. उनके साइड में से एक थोड़ी सी रो होती है, देयर इज़ ए पैडी वे होता है जहाँ से हम कदमों से जा सकते हैं. सो आपको वो दूर से नज़र आ जाते हैं. इधर यू आर सिटिंग इन द ट्रेन कंपार्टमेंट और इधर यू आर ऑन द land formations. After that we come to know that it was a magnificent view. ये बहुत ही शानदार व्यू था against the
Drawback of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as for the eye could see. अब यहाँ से दूर से एक पहाड़ नज़र आ रहा था जहाँ पर डेंसली यानी काफ़ी घनी आपको एक फॉरेस्ट नज़र आएगा, और वहाँ पर आप उसके आसपास आपको जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक आपको टी बुशेस नज़र आएंगे. टी बुशेस क्या होती है? चाय की पत्तियों के झाड़े नज़र आते हैं. Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll like figures. अब आप वो सिनेरियो यहाँ पर आपको इमेजिन करने के लिए बोल रहा है. ड्वार्फिंग मीन्स होता है छोटे छोटे यानी बोने टाइप में जो टाइनी से छोटे से टी प्लांट्स हैं उनके ऊपर बड़े बड़े शेड ट्रीज़ यानी कि बड़े ट्रीज़ जो है वो उगाए जाते हैं ताकि उन पर छाँव रहे, एंड दे कैन ग्रो एट मोस्ट. सो उनके बीच में कुछ बिशेज़ हैं मूव लाइक, उनके बीच में कुछ इंसान हैं जो बिल्कुल एक हेड कैप पहन के उन जो पत्तियां हैं वो तोड़ रहे होते हैं. तो वो किस तरह की तरह लगते हैं दूर से कि वो एक डॉल लाइक फिगर है, सिर्फ वहाँ पर एक कुछ डॉल्स खड़ी है. दे आर जस्ट बिजली मूव्ड इनसाइड द बिशेज़. कुछ ऐसा लगता है कि वो बिशेज़ के अंदर से मूव कर रही हैं, राइट. सो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा है. नाउ इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. लेकिन दूर से ही एक और अगली बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है जिसमें से धुआं बाहर आ रहा है चिमनी में से. अब ये किस चीज़ की हो सकती है? मे बी मैन्युफैक्चर कंपनीज हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पर टीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है. सो ये एक अगली बिल्डिंग है. अगली क्यों बोला है? क्योंकि सारी जगह सिर्फ ग्रीनरी है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट ये एक ह्यूमन मेड अगली थिंग है जिसमें से सिर्फ पोल्यूशन ही है जो बाहर आ रहा है, नथिंग एल्स. नाउ राजवीर जो है वो एकदम से एक्साइटेडली चिल्लाता है. वो कहता है हे ए ट्री गार्डन, टी गार्डन. वो कहता है ये चाय का बगीचा यानी चाय का बागान आ गया. प्रंजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट. लेकिन प्रंजल इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है और ना ही वो राजवीर की तरह एक्साइटेड होकर चिल्लाता है. बट प्रंजल क्योंकि यहाँ पर पला है, बड़ा है, और उसने अपने हर ज़िंदगी में यू कैन से हर पहलू में अपने प्लांटेशंस को टी प्लांटेशंस को देखा है क्योंकि उसके पिता खुद में क्या है? मैनेजर हैं टी प्लांटेशन के. नाउ ओह दिस इज़ द ट्री कंट्री नाउ. He said, Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough garden to last your lifetime. देन प्रंजल जो है वो सिंपली उसको ये कहता है ये सबसे बड़ा टी प्लांटेशन एरिया है दुनिया का, इससे ज़्यादा टी प्लांटेशन दुनिया में कहीं नहीं होती है. और तुम जब तक यहाँ रहोगे तुम्हें बहुत सारे गार्डन्स ऐसे ही दिखाई देंगे जब तक यू कैन से, और तुम जब तक चाय पीते रहोगे यहाँ यहीं की चाय है जो तुम अपने घरों में यहाँ की पाओगे, राइट. सो यहाँ वो प्रंजल जो है वो ये कहना चाहता है कि दैट आई एम फैमिलियर विद ऑल दिस सीनरीज एंड आई हैव नो सच एक्साइटमेंट एज लाइक द राजवीर. बट वो उसको सिंपली यही कहता है कि सबसे बड़ा बगीचा या बागान कहाँ होते हैं? असम में ही होते हैं. आफ्टर दैट ही सेज आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट टी. राजवीर जो है वो असम के बारे में और टी के बारे में काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ किताबों में पढ़ कर आया है. तो वो राजवीर बताता है प्रंजल को कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें टी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स. लेजेंड्स में क्या होता है यहाँ पे? स्टोरीज जो प्रिवेल्ड होती हैं जो वन टाइम टू आफ्टर टाइम अपनी जनरेशन्स को हम सुनाते हैं. दीज आर द लेजेंड्स, राइट. सो अब जो राजवीर है उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी अबाउट टीज़. तो वो कहता है कि ये कोई नहीं जानता कि टी किस तरीके से डिस्कवर हुई थी, किसने की थी. नो वन नोज, राइट. लेकिन इसके लिए क्या है? 2 कहानियाँ मशहूर हैं ना. प्रंजल कहता है वर्ड लिजन, कौन सी कहानियाँ? क्या कहानी? देन राजवीर सुनाता है वेल देर वॉज द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्प्रर. एक कहानी तो है चाइनीज़ एम्प्रर के बारे में. हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. तो वो हमेशा बॉइल्ड वाटर पीता था और उसको बॉइल यू कैन से ड्रिंक को पानी को पीने से पहले उसको बॉइल करता था. वन डे फ्यू leaves of the twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were the tea leaves.
एक बार क्या होता है कि कुछ ट्विक्स होती हैं टहनी, जिसके जैसे हमारे यहाँ चूल्हा होता है तो हम उसमें ट्विक्स डालते हैं, टहनियाँ डालते हैं जिससे आग जलती रहे, वैसे ही वहाँ टहनियाँ थी टीज़ की। तो टीज़ की वो डालते हुए उसमें पानी में 1-2 पत्तियाँ जो थी वो गिर गई। तो उसके गिरने के बाद वो फ्लेवर जो वो मिक्स हो जाता है वाटर में और वो बहुत डिलीशियस फ्लेवर रिजल्ट आउट करता है। और उसके बाद वो कहा जाता है कि वो टीज़ जो लीव्स थी वो टी की थी, यानी कि चाय की पत्तियाँ थी। एक तो ये है। देन प्रिंजल काफ़ी एक्साइटेडली पूछता है, टेल मी अनदर, दूसरी मुझे बताओ, दूसरी वाली कहानी क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब राजवीर कहता है हमारे पास एक इंडिया की भी एक स्टोरी है, ये है बौद्ध धर्म के बारे में, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट असिस्ट। यहाँ पे कहता है कि एक बुद्धिस्ट था, एक भिक्षु था, यू कैन से, कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब क्या था, उसने अपनी पलकों को काट दिया था क्योंकि वो जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता तो उसे नींद आ जाया करती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स। ऐसा कहा जाता है कि उसकी पलकें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ एक एक पौधा उग गया, किसका, टी का। और जब भी अगर कोई उन प्लांट्स के लीव्स को हॉट वाटर में यू कैन से बॉईल करके पीता है तो आपकी जो स्लीप है वो बैनिश हो जाती है। बैनिश मीन्स उड़ जाती है अगर आप उसे पीते हो। तो ये 2 स्टोरीज़ हैं जो हमें पता लगी हैं बाय द रेफरेंस ऑफ यू कैन से legend historical books which has been told by Rajveer here himself. So here राजवीर कहता है, राजवीर इसके बारे में बात करता है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। टी जो है यानी चाय जो है पहली बार कहाँ पी गई थी, चाइना में। और ये बात है 2700 BC की। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि यहाँ क्रिश्चियनिटी का जन्म भी नहीं हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही चाइना में पहली चाय पी ली गई थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो इसीलिए तो हम चाय और चीनी जो है हमारे कहाँ से आए हैं, चाइनीज़ वर्ड है और हम वहीं से इनको यू कैन से इवॉल्व करके लाए हैं। नाउ टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 1500 से लेकर 1600 तक की टाइम पीरियड को हम 16th सेंचुरी बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि यूरोप में तो चाय बहुत लेट आई है, दैट इज़ 16th सेंचुरी के आसपास, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एज मोर देन ए बेवरेजेस। जैसे इंडिया में हर घर में चाय सुबह और शाम बनती है सिर्फ पीने के लिए एज ए ड्रिंक, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में ये एक मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ये उसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। द ट्रेन ग्लाइडेड इनटू द मिरानी जंक्शन। मिरानी जंक्शन में ट्रेन जो है वो रुकती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज। अब वो अपना सामान उतारते हैं और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर अपना सामान को पुश करते हैं और आगे चले जाते हैं। मिरानी जंक्शन कहाँ है, आसाम में। प्रिंजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर दैम। प्रिंजल के पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए वेट कर रहे थे। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स दिखाबाड़ी। हेयर देखियाबाड़ी जो है वो एक यू कैन से टी गार्डन है जिसको मैनेज करते हैं प्रिंजल के फादर, राइट। सो दिखाबाड़ी क्या है, यहाँ है देखियाबाड़ी, दैट इज़ टी गार्डन विच इज़ मैनेज्ड बाय प्रिंजल्स फादर। नाउ एन आवर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब थोड़ी देर बाद जो मेन रोड है वो आ जाता है, जो गाड़ी है उस पर वो चलाने लग जाते हैं। दे क्रॉस कैटल ब्रिज एंड एंटर द देखियाबाड़ी टी स्टेट। अब क्या है, जैसे ही वो सड़क से क्रॉस करते हैं तो एक ब्रिज आता है, उसे हम कैटल ब्रिज बोलते हैं, जो छोटी सी नाले या फिर किसी रिवर के छोटी सी रिवर के ऊपर भरा हुआ होता है, उसे हम कैटल ब्रिज बोलते हैं। तो यहाँ ब्रिज मतलब पुल होता है। सो यहाँ वो ब्रिज पार करते ही वो देखियाबाड़ी टी स्टेट में अंदर एंटर कर लेते हैं। आफ्टर दैट ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर अक्रॉस अपॉन द एकर ऑफ टी ब्यूसेस। दोनों ही तरफ आप चलोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, टी ब्यूसेस दिखाई देंगे। ऑल नियरली प्लंज टू द सेम हाइट। सभी एक तरीके की काटी हुई थी, यानी एक हाइट तक काटी हुई थी। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैग्स wearing plastic apron were plucking the newly sprouted leaves। अब क्या है, आपको जो दूर से डो लाइक फिगर्स दिख रही थी वहाँ जाकर हमें पता चलता है वो डो लाइक फिगर्स कौन है, टी प्लकर्स, जो चाय की पत्तियों को जो नई नई पत्तियाँ आती है, स्प्राउट होती हैं, खिलती हैं, उनको तोड़ते हैं और उन्हीं की वजह से क्या बनता है, चाय बनती है, चाय पत्तियाँ बनती है। उनका जो जेस्चर पोस्चर वो कैसी है कि वो बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू बास्केट अपने सिर पर
अपने बैग पर टांगे हुए रखती हैं और प्लास्टिक एप्रन्स पहने होती हैं जिनसे उनकी ड्रेसेस जो हैं उनमें कोई और यू कैन से फंगल ना लगे या कोई गंदे ना हो. After that, Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailing load of tree leaves to pass. थोड़ी देर में प्रंजल के फादर जो हैं एक ट्रैक्टर को स्लो डाउन कर देते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि ये ट्री लीव्स जो है लोड होकर जा रही है. और इससे देखकर राजू काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है. तो मिस्टर प्रंजल के पापा से पूछता है जिनका नाम है मिस्टर बरुआ. जो मिस्टर बरुआ है वो प्रंजल के फादर हैं, यहाँ हमें पता चलता है. सो दिस इज़ द सेकेंड फ्लैश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ. तो यहाँ वो जो राजवीर हैं वो प्रंजल के फादर को मिस्टर बरुआ करके बोलते हैं. तो वो कहते हैं कि ये एक सेकंड सीज़न है जब आप इनके सेकंड रूट को यानी सेकंड स्प्राउट को प्लग कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है जब यू कैन से मॉनसून से नेक्स्ट थोड़ा सा होता है. इस टाइम में हम दोबारा से कलियाँ जो खिलने लग जाती हैं हम उनको स्प्राउट आउट करते हैं. तो मिस्टर बरुआ जो कहते हैं इस लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई यील्ड द बेस्ट ट्री. तो राजवीर पूछता है कि शायद ये वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ, जो मई और जुलाई तक चलती है, ये सबसे बेस्ट ट्री होती है. नाउ प्रंजल फादर काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं उसके इतनी इन्फॉर्मेशन से. वो कहते हैं यू सीम्स टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग. ओके, तो तुम यहाँ पर आने से पहले काफ़ी कुछ पढ़ कर आए हो, राइट? वेरी गुड. देन मिस्टर बरुआ उसको आंसर देते हैं यस, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो. राजवीर एडमिटेड बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. बट मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और यहाँ रहकर भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस.ए. फ्रॉम आसाम. और हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे एक टी है वो सबसे यू कैन से लेट प्रिवेल्ड बेवरेजेस है हमारी इंडिया का, और लगभग पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का सेवन किया जाता है. इसको एज ए हॉट लिक्योर पिया जाता है. यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको एज ए you can say medicine लिया जाता है, but in India and Asian countries it is a usual drink for Asians. So here from first point to till last we come to know the journey about the Pranjal and Rajveer, and they will come across many of the you can say sceneries as well as the destinations. We have to make the points out of them, and let's on with the continuation of this very part. Let's go with the exercise which you have to put all these things into your you can say in your fair notebook. I hope this has been clear to you, which I just told you in Hindi as well as English. So I hope you will find out the difficult word meaning. You will write them down in your fair notebook. So this is all about the glimpses of India we have already been done. So this we have done the all three parts of this, and I hope you will come across to the first two parts which have already been discussed in the last two videos, and in the currently video, that is Tea from Assam by Rukumar Datta, has been discussed thoroughly at the extent manner. So you have to take a reading and find out the difficult word meaning and put all these difficult word meaning in a notebook and learn them, because these are very familiar. Because whenever you will go somewhere, then it will be beneficial for you. You can use all these words in the different conversations. I hope this has been clear now. Thank you. We will meet in the next video. Thank you so much.